Good morning, everyone. Am I audible? Morning, sir. Good morning, everyone. I would like to request if there is someone from Gujarat and Tripura Aru, and if they can confirm that all the stakeholders have joined the meeting. Hello. Hello, good morning. This is Rajneesh Good from morning. CSDD NABARD HO. I'm requesting someone from Gujarat and Tripura Aru to confirm if all the stakeholders have joined the meeting so we can start the demonstration. Uh, I didn't get any confirmation, so we shall wait for more minutes. Exactly at 11:10, we'll start with the demonstration. I'll request all the participants to kindly keep themselves on mute till the demonstration. The demonstration will be given by NUSV team. First, a DCT demonstration will be given, and then the ERP demonstration. I would request that once the demonstration is done, then you might raise your questions and clarifications. And it is important कि आप note करें whatever customizations you want so that you can communicate the same to SPMUs, and this has to be done before 14th July, as you might have seen the letter from MOC. So I request you to kindly keep yourself on mute till the demonstration is on so that disturb now session. We'll start in 3 more minutes.
Good morning, everyone. Now we shall start with the demonstration slash presentation, and I'll hand over the procession to the NUSV team. Yeah, Karthik ji, are you available? आप है क्या? Karthik ji and Fani? Hello? Karthik and Fani, am I audible?
Good morning, everyone. May I please again confirm if Gujarat and Tripura ROs are there in the meeting, and can they also confirm the presence of all stakeholders so we can start the demonstration? Yes, sir. We are from Tripura. Audible? Hello, am I audible? Yes, you are. Ramesh, can you hear me? Yes, Hello. yes, Fani and Karthik, yes, you are audible. And your Okay. screen is also visible. Please. Yeah. Shall we start the session? Yes, Karthik, continue. Yeah, okay. Before we start, Karthik, correct? Yes. Before we start, Karthik ji, just 1 second. I would again like to reiterate कि please pay attention during the entire demonstration. उसके बाद जो भी आपके उसके बाद whatever customizations all the stakeholders have, you are kindly requested to coordinate with SPMU and RO and submit all the customizations before 14th July. Kindly keep yourself on mute till the demonstration is on. Once the demonstration of DCT and ERP first section is done of DCT, you may ask your doubts or clarifications to Karthik ji. And after ERP, which will be given by Ramesh ji, you can ask the same doubts to him as well. The basic point is we have to be ready with customizations before 14th July. So kindly do the needful. Now I will hand the meeting over to Karthik ji for starting the demonstration. Karthik ji, you may start. Yeah, we'll start now. Okay. So, in ये DCT में हम पहला आप लॉगिन करते हैं ना, इसमें आपको दो स्टेप्स में ये DCT का कैप्चरिंग शुरू होती है. पहला है ऑनबोर्डिंग स्टेप. ऑनबोर्डिंग स्टेप में आप पहली बार जब इसमें लॉगिन करते हैं ना, आपको जो इसमें तो ये सारी स्टेप्स देखने को मिलती हैं. पहला मैं अभी एक स्लाइड शो के थ्रू सारी ऑप्शंस इसमें क्या क्या चीज है ये सारी चीज मैं आपको क्विकली दिखाता हूं. बाद में एक डेमो लॉगिन से मैं एक एक स्क्रीन को आपको एक्सप्लेन करता हूं. ऑनबोर्डिंग में हमारा पहला स्टेप ये है कि आपकी जो बेसिक डिटेल्स है FHR और FPR से आपने ऑलरेडी फिल किया होगा. वो डिटेल्स ये ऑनबोर्डिंग स्टेप में आपको मिलेगा. आप में इसको कुछ मॉडिफिकेशंस है तो आप कर सकते हैं. इसमें आपको बेसिक डिटेल्स और ब्रांच डिटेल्स का ऑप्शन ऐड करने का, एडिट करने का ऑप्शन दी गई है. दूसरा स्टेप है इसमें हमारा कवर्ड विलेजेस. इसमें आपको आपकी ARDB या PCRDB जो भी है, आप कवर्ड विलेजेस की लिस्ट को आप ऐड कर सकते हैं. इसमें कुछ पिन कोड या विलेज मॉडिफिकेशंस है तो आप कर सकते हैं. दूसरा ऑप्शन है हमारा ये विलेजेस का. नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट एंड स्टाफ डिटेल्स. इसमें आपको आपके जो इंडिविजुअल स्टाफ डिटेल्स को एंट्री कर सकते हैं
और नीचे डिपार्टमेंट की डिटेल्स भी आप कैप्चर कर सकते हैं। और इसमें आपको डिलीट का ऑप्शन भी दी गई है, इससे आप कुछ गलत एंट्रीज को भी डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेंबरशिप में आपको ये सारी डिटेल्स FHR और FER के समय आप जो फिल किया वो सारे डिटेल्स इधर आ जाएगा, और वो डिटेल्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और उसमें जो अमाउंट या नंबर ऑफ लेजर्स, ये डिटेल्स में आप एडिट करने का ऑप्शन भी दी गई है। नेक्स्ट है हमारा डिपॉजिट्स। ये डिपॉजिट्स में आपको फिक्स्ड डिपॉजिट्स और नॉर्मल सेविंग डिपॉजिट्स का, सारे डिपॉजिट्स का इसी स्क्रीन से आप ऐड, एडिट और डिलीट का भी ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिलती है। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, ऐड, इसमें कुछ मिस हुआ तो आप ऐड कर सकते हैं, और डिलीट का भी ऑप्शन दी गई है इसमें। नेक्स्ट है हमारा लोन्स। लोन्स में भी सेम आपको सेम वैसी स्क्रीन मिलेगा, और इसमें जो पहला से जो डाटा आती है वो FHR और FER से वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा इससे। और इसमें आपको और कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी देना पड़ता है डिपॉजिट्स और लोन्स में, वो भी है इंटरेस्ट कैलकुलेशन टाइप। मतलब वो फिक्स्ड डिपॉजिट है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाली, और नॉन कंपाउंड या सिंपल डिमांड डिपॉजिट्स का आप सेलेक्ट करनी है। और लोन्स है तो उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है, मतलब वो सिंपल इंटरेस्ट वाली लोन्स है या कंपाउंड इंटरेस्ट वाली लोन्स, नहीं तो EMI, मतलब एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट जैसा टर्म लोन्स भी आप इसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन टाइप में दे सकती हैं। और इसमें आपको कोलैटरल टाइप्स भी देना है लोन्स में। कोलैटरल टाइप ये है कि किसी एक फार्मर या कस्टमर को आप लोन देते समय उसके पास आपने क्या सिक्योरिटी डिटेल्स लिया, मतलब लोन की अगेंस्ट आप किस सिक्योरिटी पे कस्टमर या फार्मर को आपने लोन दिया, वो डिटेल्स भी इधर देना पड़ता है। मतलब किसी एक लोन प्रोडक्ट पे वो लोन प्रोडक्ट कस्टमर को ऑफर करने के लिए आप क्या सिक्योरिटी लिया कस्टमर से, मतलब वो लैंड मॉर्टगेज भी हो सकता, नहीं तो गोल्ड लोन्स, गोल्ड प्लेज भी हो सकता है। किसी एक व्हीकल लोन है तो वो व्हीकल का डिटेल्स, प्रॉपर्टी लोन है तो प्रॉपर्टी का डिटेल्स, और किसी एक स्टाफ मेंबर है तो उसकी श्योरिटी या गारंटर डिटेल्स भी, और किसी एक फिक्स्ड डिपॉजिट है तो वो फिक्स्ड डिपॉजिट बॉन्ड की डिटेल्स भी लेना पड़ता है। ये है कोलैटरल टाइप्स। और ये है ऑनबोर्डिंग में लास्ट स्टेप है, आप इसे ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपने ऑनबोर्डिंग फिनिश किया, इसके हिसाब से आपकी जो DCT आने वाली DCT कैप्चरिंग में सारी ऑप्शंस एनेबल हो जाएगा। मतलब आप इधर देखो, आप किसी एक प्रोडक्ट को इंटरेस्ट कैलकुलेशन के हिसाब से आपको स्क्रीन्स मिल जाएगी। मैं दिखाता हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट आने वाली कैप्चरिंग, डाटा कैप्चरिंग DCT स्क्रीन्स में आपको ये ऑप्शंस मिलेगा कि टर्म डिपॉजिट्स में क्यूमुलेटिव की एक ऑप्शन मिलेगा, और नॉन क्यूमुलेटिव के लिए एक ऑप्शन, डिमांड डिपॉजिट्स के लिए एक ऑप्शन, और डेली डिपॉजिट्स के लिए। और लोन्स आप लिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक ऑप्शन, और टर्म लोन्स के लिए एक ऑप्शन, और सिंपल सा इंटरेस्ट वाली लोन्स के लिए दूसरा ऑप्शन सेपरेट आपको मिलेगा। इसके हिसाब से सारी ऑप्शंस आपकी जो DCT में एनेबल हो जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल आपने नीचे देख सकते हैं ये ट्रैक्टर लोन है, मैंने इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐड किया, बाद में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक किया तो सिर्फ ये ट्रैक्टर लोन प्रोडक्ट उसी स्क्रीन पे आपको देखने को मिलती है। आप सिंपल इंटरेस्ट ऑप्शन में क्लिक करके ये ट्रैक्टर के लिए सर्च किया तो वो उधर नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑनबोर्डिंग में ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन और कोलैटरल डिटेल्स थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, और इसकी हिसाब से आपकी जो आगे का DCT स्क्रीन्स में सारी ऑप्शन आपको एनेबल हो जाएगी। और दूसरा है कि आप एक बार ये ऑनबोर्डिंग कंप्लीट किया तो इसकी जो रोल बैक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप किसी आप RO या HO से भी कांटेक्ट करके इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि एक बार ये कंप्लीट किया तो इसका रोल बैक ऑप्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा जो एक्चुअल DCT डाटा कैप्चर का जो स्क्रीन्स क्या है, उसमें क्या क्या चीज आपको देखने को मिलती है, ये सारी डिटेल्स है। इसमें आपको मेंबरशिप कैप्चर करने के लिए आपको 3 ऑप्शन में आप मेंबरशिप को कैप्चर कर सकते हैं। इस
वो पहला ऑप्शन है कि इंडिविजुअल मेंबर्स को कैप्चर करना और ग्रुप मेंबर्स और इंस्टीट्यूशंस। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलती है। इसमें आपको ऊपर देखो आप ARDB की नेम, ब्रांच नेम देख सकते हैं। और किसी एक कस्टमर की ओवरव्यू आप देखना चाहिए तो 360 डिग्री व्यू का ऑप्शन भी है। और एनालाइजर रिपोर्ट का ऑप्शन है, क्योंकि एनालाइजर रिपोर्ट्स में आपको वैलिडेशंस जो होता है, मैं बताता हूँ आपको वैलिडेशंस क्या क्या होता है। वो सारी वैलिडेशंस एनालाइजर रिपोर्ट में आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। और ये लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलती है जो एक्चुअल मेनू स्क्रीन है। ये इंडिविजुअल स्क्रीन की ऑप्शंस है ये। और इसमें आपको एक एक इंडिविजुअल डाटा रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं और उसके लिए वेरिफिकेशन की बटन भी आपको ऊपर देना है। और दूसरा आप इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को भी ऐड भी कर सकते हैं। और इसमें आपको किसी एक रिकॉर्ड को आप व्यू, एडिट, वेरीफाई और डिलीट का ऑप्शन भी है। ये एक इंडिविजुअल मेंबर की ऐड करने का स्क्रीन है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ जब DCT डेमो लिंक से मैं एक बार हर स्क्रीन को मैं इंडिविजुअली एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन ये है एक्चुअल स्क्रीन एक क्लास मेंबरशिप क्रिएशन करने के लिए एक रिकॉर्ड को। इसमें आपको सेव कर सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू भी कर सकते हैं। मतलब आप एक बार सेव किया तो और इसी स्क्रीन पे आ जाएगा, नहीं तो आप सेव एंड कंटिन्यू किया तो इसी स्क्रीन पे रहेगा दूसरी रिकॉर्ड कैप्चर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप डिटेल्स की कैप्चरिंग स्क्रीन ये है। और इंस्टीट्यूशन डिटेल्स का कैप्चरिंग स्क्रीन ये है। और दूसरा है इसमें ग्रुप और इंस्टीट्यूशन में आपको प्रमोटर्स की डिटेल्स भी देना पड़ता है। प्रमोटर मतलब जो किसी एक आप महिला समूह को वो ग्रुप के लिए कुछ लोन दिया, नहीं तो उससे कुछ डिपॉजिट लिया, वो ग्रुप में कौन कौन सी मेंबर्स है और उसकी डिटेल्स सारी इसमें प्रमोटर के रूप में एंट्री करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपको व्यू स्क्रीन। मतलब ये वेरिफिकेशन के लिए आप किसी एक रिकॉर्ड को आप दूसरी लेवल पे भेज सकते हैं। वो इस तरह आपको देखने को मिलती है स्क्रीन, व्यू स्क्रीन। ये इश्यूज इंडिकेटर, मतलब मैंने ये एनालाइजर रिपोर्ट की इश्यूज और उसमें इंडिकेटर्स, मतलब कितनी इश्यूज है आप देख सकते हैं। ये एक रिकॉर्ड में कितनी इश्यूज है आप उधर देख सकते हैं। ये रिसबमिशन की कमेंट्स है, मतलब वो दो ऑप्शंस आपने देखा है और उसकी रिसबमिशन आप कर सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। नेक्स्ट है हमारा लैंड डिटेल्स। लैंड डिटेल्स स्क्रीन आपको कुछ ऐसा दिखते हैं। इसे आप किसी एक मेंबर की एडमिशन नंबर देके वो रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं। उसके लिए आपको पासबुक नंबर या खाता नंबर दोनों में किसी एक को देख डाटा एंट्री करके सेव करना पड़ता है। और उसके बाद एक एक इंडिविजुअल सर्वे नंबर्स की डिटेल्स देना है और वो लैंड का डिटेल्स भी देना पड़ता है इस स्क्रीन पे। आप इधर एडमिशन नंबर देना है, पासबुक और खाता नंबर एंट्री करना है। और नीचे आपको ऐड बटन दिखा रही है ना, इससे आप विलेज नंबर, सॉरी विलेज नेम और लैंड कितनी एकड़ का है और लैंड टाइप क्या है, वो उसका ओन लैंड है या किसी से उन्होंने रेंट पे लिया, ये डिटेल्स देना है और सेव करना है। ये लैंड डिटेल्स का है। नेक्स्ट है हमारा डिमांड डिपॉजिट्स। इसे भी आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगा और इसमें आपको ऐड करने का स्क्रीन ऐसा दिखेगा। इसमें आपको एडमिशन नंबर देना है और प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है और उसके हिसाब से जिसमें वो स्टार मार्क मैंडेटरी फील्ड्स जो है वो सबको फिल करना है। नेक्स्ट है हमारा डेली डिपॉजिट्स। डेली डिपॉजिट स्क्रीन भी सेम आपको ऐसी देखने को मिलती है और इसका ऐड स्क्रीन ये है। इसे प्रोडक्ट के साथ साथ आपको एजेंट का डिटेल्स भी सेलेक्ट करना पड़ता है। और नेक्स्ट है हमारा टर्म डिपॉजिट्स क्यूमुलेटिव। ये भी सेम स्क्रीन है आपको और इसे ऐड स्क्रीन आपको ऐसा दिखेगा। इसे आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है और सारी डिटेल्स फिल करनी है और सेव करनी है। नेक्स्ट है हमारा नॉन क्यूमुलेटिव। सेम स्क्रीन आपको देखने को मिलती है और उसकी ऐड स्क्रीन और रिकॉर्ड क्रिएशन स्क्रीन आपको ऐसा दिखती है। इसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है और सारी डिटेल्स फिल करनी है और सेव करनी है। हर एक प्रोडक्ट के आपको सेपरेट नॉमिनी डिटेल्स है तो आप नॉमिनी डिटेल्स भी इंडिविजुअली सेव कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट्स, ये भी सेम स्क्रीन है और उसकी एड या क्रिएशन स्क्रीन आपको ऐसा देखने को मिलती है। इससे आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है और सारी डिटेल्स फिल करना है और सेव करना है। नेक्स्ट है हमारा क्रॉप लोन्स। शायद आपके पास क्रॉप लोन्स ना हो, लेकिन आप इसे देख सकते हैं, इससे भी सेम ऑप्शंस रहेगा सारी लोन्स का। और इससे आपको किसी एक लोन आप ले लिया तो उसमें आपको 3 स्टेप में एक रिकॉर्ड को कैप्चर कर सकते हैं। एक है एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन में आपको जो एप्लीकेशन या सैंक्शन लेवल पे आप क्या क्या चीज आपने लिया वो सारी डिटेल्स एंट्री करना है। और दूसरा है हमारा डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट में आपको ये डिसबर्समेंट डिटेल्स देना है, मतलब आप कब कब फार्मर या कस्टमर को आप लोन किस डेट पे कितना अमाउंट उनको डिसबर्स किया, वो सारी डिटेल्स देना है। नेक्स्ट है हमारा कलेक्शन। कलेक्शन मतलब जो लोन का रिपेमेंट, ये कस्टमर या फार्मर से आप कब लोन रिपे किया और उसमें चार्जेस कितना लिया, पेनाल्टी है तो वो कितना लिया, इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल, ये सारी डिटेल्स देके ये रिकॉर्ड को सेव करनी है। नेक्स्ट है हमारा सिंपल इंटरेस्ट लोन्स। सेम वही स्क्रीन आपको देखने को मिलती है, इससे आप प्रोडक्ट नेम, एडमिशन नंबर, लोन नंबर, ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं। और इससे भी आपको ऐड का स्क्रीन सेम वैसे मिलेगा, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल्स इधर देना पड़ता है, मतलब उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बिना क्रॉप की। नेक्स्ट है हमारा डिसबर्समेंट डिटेल्स। इसे आप हम पहला देख चुका है, वही डिसबर्समेंट डिटेल्स इधर देना है। नेक्स्ट है हमारा लोन कलेक्शन, ये भी सेम स्क्रीन है। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट लोन्स, ये भी सेम आपको देखने को मिलती है। एप्लीकेशन लेवल सारी डिटेल्स फिल करनी है और डिसबर्समेंट लेवल डिटेल्स फिल करना है कलेक्शन लेवल का। नेक्स्ट है हमारा टर्म लोन्स, ये भी सेम आप स्क्रीन आपको देखने को मिलती है। इसे आपको एप्लीकेशन लेवल स्क्रीन से ऐसे मिलेगा और डिसबर्समेंट लेवल में ये डिसबर्समेंट डेट और अमाउंट देना है और कलेक्शन लेवल में आपको कलेक्शन डेट और ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। नेक्स्ट है हमारा बोरोइंग, मतलब आप किसी दूसरी इंस्टीट्यूशन या आपकी हेड ऑफिस, आपकी SCRDB से आप कुछ बोरो किया और वो रिपेमेंट, वो रिफाइनेंस की तरह किसी एक कस्टमर के दिया, वो जैसा आपकी दूसरी बैंक या इंस्टीट्यूशन से आप कुछ बोरो करते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको बोरोइंग्स में देना पड़ता है। इसमें भी सेम आपको तीनों ऑप्शन में फिल करनी है। एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में इसमें कहाँ से आप वो बोरोइंग लिया, उसका पर्पस क्या है, कब सैंक्शन हुआ, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी डिटेल्स देना है। डिसबर्समेंट है, डिसबर्समेंट में भी आप कब कब वो डिसबर्समेंट कब लिया बैंक या किसी दूसरा इंस्टीट्यूशन से, वो डिटेल्स हैं। नेक्स्ट, अब वो बोरोइंग के अगेंस्ट कब रिपेमेंट्स किया, वो रिपे डेट क्या है, अमाउंट क्या है, ये चीज। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स में आपको आप आपकी PCRDB या CRDB ब्रांच में कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपने किया, मतलब किसी इंस्टीट्यूशन में आप FD कर दिया, नहीं तो किसी दूसरी इंस्टीट्यूशन से आप शेयर्स खरीदा, ये सारे डिटेल्स आप इससे देख सकते हैं। इसमें आपको ऐड बटन ऐसा मिलेगा, इसमें टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है वो देना है, मतलब वो शेयर्स या बॉन्ड्स नहीं तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स, वो सेलेक्ट करनी है। और वो इंस्टीट्यूशन नेम और उसकी फ्रीक्वेंसी और उसमें जो भी मैंडेटरी फील्ड्स है वो सारी देना है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट डेफिनेशन। प्रोडक्ट डेफिनेशन की मतलब आप अभी तक कितना मेनूज में आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट के लिए वो प्रोडक्ट जो आगे वाली ERP में कैसा डिफाइन करना है, वो सारी डिटेल्स देना है। मतलब उसकी मिनिमम अमाउंट कितना रहने का है, चेकबुक चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसा कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। इसे आप देख सकते हैं, ये देखो मिनिमम बैलेंस कितना रहने का है, पैन कार्ड चाहिए नहीं चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा ये डिमांड डिपॉजिट्स के लिए, ऐसा कुछ चीज आपको देखने को मिलती है। दूसरा है टर्म डिपॉजिट्स, इसका भी सेम प्रोडक्ट डेफिनेशन सेम वैसी रहेगा, लेकिन इससे कुछ अलग सी आपको ऑप्शंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट्स, इसका भी सेम वही डिटेल्स मिलेगा, मिनिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट, ये प्रोडक्ट कब शुरू किया, कब तक ये रहेगा, नॉमिनी चाहिए नहीं चाहिए, ये सारी डिटेल्स देना है। नेक्स्ट है हमारा लोन्स। लोन्स में आपको सारी लोन्स के लिए आपको 3 लेवल की
ऑप्शंस एंट्री करनी है, एप्लीकेशन लेवल, सैंक्शन लेवल और अकाउंट एंड डिसबर्समेंट पैरामीटर्स, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा ओबी समरी। ये ओबी समरी में आपकी बैलेंस शीट के हिसाब से आपको ये जो फील्ड्स आपको दिखा रही है एंट्री फील्ड्स, वो उसमें आपकी डाटा एंट्री करनी है। और ये जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एज पर डीसीटी एंड बैलेंस एज पर डीसीटी, ये अपने आप आएगा, क्योंकि आप हर एक स्क्रीन में एक एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड को ऐड करते समय ये डाटा वो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट करेगा और बैलेंस भी सिस्टम एक एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड का ऐड करके इधर आपको दिखाएगा। और आपकी जो बैलेंस शीट की डाटा आप इधर देखे, इसको सेव किया, उसमें कुछ अंतर है तो वो अंतर भी आपको ये डिफरेंस अमाउंट और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डिफरेंस में आपको इधर दिखाएगा। और वो रिमार्क्स, नेक्स्ट वाली रिमार्क्स को आप सेलेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि वो डिफरेंस की रीजन क्या है, वो सारे रिमार्क्स इसमें आपको रिमार्क्स ऑप्शन से आप सेलेक्ट करनी है और सेव करनी है। नेक्स्ट है हमारा डैशबोर्ड। ये एक्चुअल डैशबोर्ड है। आप जब लॉगिन करते हैं ना, उस समय आपको पहला स्क्रीन यही दिखेगा, आपकी डैशबोर्ड एक्टिविटी रिपोर्ट्स। इससे आपको कितनी रिकॉर्ड्स अभी तक कैप्चर किया और इसमें कितना वेरीफाई किया, आपने कितनी रिकॉर्ड्स अप्रूव किया, ये सारे डिटेल्स आपको दिखाएगा। आप ये ऑल भी देख सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है हमारा एनालाइजर रिपोर्ट। आप इधर देख सकते हैं नीचे से दूसरी फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट से फर्स्ट रिकॉर्ड देखो आप, उसकी डिपॉजिट डेट और एडमिशन डेट, किसी एक मेंबर की डेटा मैंने कैप्चर किया और उसकी अकाउंट ओपनिंग डेट वो एडमिशन डेट की पहला दिया मैंने, इसीलिए आपको इधर दिखा रहे कि पहला एडमिशन डेट होना चाहिए और उसके बाद ही अकाउंट ओपनिंग का डेट होना चाहिए। और अब ड्यू डेट, सैंक्शन डेट, हर एक फील्ड के लिए एक वैलिडेशन रहती है, वो वैलिडेशन के हिसाब से इधर आपको एनालाइजर रिपोर्ट जनरेट होगा। और दूसरा लास्ट ऑप्शन है हमारा ओवरव्यू। किसी एक इंडिविजुअल कस्टमर की 360 डिग्री मेंबर ओवरव्यू आप देख सकते हैं। वो मेंबर की एडमिशन नंबर सेलेक्ट किया तो वो मेंबर के एक्टिव लोन्स और डिपॉजिट्स कितना है, ये अपने आप इधर दिखाएगा। और नेक्स्ट है अप्रूवल स्क्रीन्स। अप्रूवल स्क्रीन्स पहला जो डाटा एंट्री करते हैं ना, वो डाटा एंट्री करने के बाद आप इंडिविजुअल रिकॉर्ड को वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन करने के बाद दूसरी लॉगिन में आपको ये रिकॉर्ड्स को अप्रूव करने के लिए ये स्क्रीन है। इसे आपको हर एक रिकॉर्ड को इंडिविजुअली व्यू कर सकते हैं और अप्रूव भी कर सकते हैं। आप वेरिफिकेशन करने के समय आप किसी एक फील्ड में कुछ अंतर आपने देखा तो वो फील्ड का सेलेक्ट करनी है और नीचे आपको रिमार्क्स का ऑप्शन भी दी गई है। वो रिमार्क्स उसमें क्या गलत है वो रिमार्क्स में आपको लिखे, वो रिकॉर्ड को आप रीसबमिट कर सकते हैं। ये ऑप्शंस का है। नेक्स्ट हम एक बार देखते हैं जो एक्चुअल डीसीटी टूल में जाके देखते हैं उसमें क्या क्या चीज है। और आप लॉगिन करते समय ब्रांच को सिलेक्ट करना है और लॉगिन पे प्रोसीड करना है। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा जूम कर रहा हूं इसका। ये सारे डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। इससे आप बेसिक डिटेल्स में देख सकते हैं आपकी जो एफईआर में जिस बेसिक डिटेल्स आपने फिल किया वो स्क्रीन पे, उसी स्क्रीन का जो सारी डिटेल्स इसी में आएगा। आप इससे चाहिए तो उसका मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ डेट भी सेलेक्ट करनी है और सारे डिटेल्स फिल करना है। मतलब आपकी पीसीआरडीबी में कुछ इंडिविजुअल ब्रांचेस है तो आपके अंदर जो ब्रांचेस है वो सारी ब्रांचेस आप ऐड कर सकते हैं और आपको नहीं चाहिए तो डिलीट भी कर सकते हैं। ऐड, एडिट और डिलीट का ऑप्शन दी गई है यहाँ। नेक्स्ट है हमारा कवर्ड विलेजेस। कवर्ड विलेजेस में आप यहाँ देख सकते हैं ये सारी डिटेल्स आप एफएचआर और एफएआर के समय जो विलेजेस दिया है वो सारी डिटेल्स इधर मिलेगा। इसमें कुछ आपको मिस हुआ तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं।
मतलब उसको डिस्ट्रिक्ट और मंडल या तहसील और विलेज को सिलेक्ट करके उसकी पिन कोड डाल के उसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट एंड स्टाफ डिटेल्स। इसे आप मैनेजमेंट एंड स्टाफ डिटेल्स को इंडिविजुअली एडिट और ऐड और डिलीट का भी ऑप्शन दी गई है। आप आपके हिसाब से इसे जो भी मॉडिफिकेशन या एडिशंस या डिलीशंस करना है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिपार्टमेंट डिटेल्स, सेम वैसी रहेगा और इसमें भी आपको ऐड, एडिट और डिलीट का ऑप्शन दी गई है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेंबरशिप। ये मेंबरशिप का सारी डाटा आपको FER से आ जाएगा और इसमें कुछ आपको मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप कर सकते हैं। और ये जो शेयर कैपिटल का बैलेंस हम बात कर रहे हैं, ये बेसिक डिटेल स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया कट ऑफ डेट। ये कट ऑफ डेट पे कितना बैलेंस है, मतलब आज की डेट की बैलेंस नहीं पूछ रहा हूं मैं सिर्फ ये कट ऑफ डेट का बैलेंस पूछ रहा हूँ। ये मेंबरशिप और डिपॉजिट्स लोन्स की स्क्रीन पे आप किस कट ऑफ डेट आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसी स्क्रीन पे, वो कट ऑफ डेट पे कितना बैलेंस अभी बाकी है, मतलब उसी डेट तक कितने एक्टिव मेंबर्स का कितना मेंबर्स है और आपकी बुक्स कितनी है और उस डेट पे आपका बैलेंस क्या है ये देना है इधर। नेक्स्ट है हमारा डिमांड डिपॉजिट्स या सॉरी डिपॉजिट्स। इसे आपको हर एक टाइप ऑफ डिपॉजिट को इसी स्क्रीन पे एंट्री करना है। इससे आपको ऐड, एडिट और डिलीट का ऑप्शन दी गई है। आप उसका ऐड, एडिट, डिलीट जो भी है आप कर सकते हैं। और इसमें आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन टाइप को सिलेक्ट करनी होती है। यह डिमांड डिपॉजिट मतलब ये सिंपल सेविंग जैसा खाता प्रोडक्ट्स आपके पास है तो उसकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन टाइप आप डिमांड डिपॉजिट्स कह सकते हैं। और आपने किसी एक सिंपल इंटरेस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट्स कस्टमर से लिया तो वो उसको आप नॉन क्यूमुलेटिव कह सकते हैं। और क्यूमुलेटिव है कि उसकी जो कंपाउंड इंटरेस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट्स को हम क्यूमुलेटिव डिपॉजिट कहते हैं। और नेक्स्ट रिकरिंग डिपॉजिट्स, ये आपको पता होगा कि कस्टमर या फार्मर आपकी PCRDB या SCRDB ब्रांच में हर एक महीना आके इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं किसी एक पीरियड तक, उसको हम रिकरिंग डिपॉजिट्स कहते हैं। और डेली डिपॉजिट सेम ये रिकरिंग डिपॉजिट्स तरह रहेगा, लेकिन ये एजेंट थ्रू का ऑपरेशन होगा इसका। ये डिपॉजिट्स का है। और दूसरा चीज आप इधर ध्यान से देखना है कि किसी एक प्रोडक्ट को मैंने डिमांड डिपॉजिट्स पे सिलेक्ट किया तो सिर्फ आपकी डिमांड डिपॉजिट स्क्रीन में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आपको देखने को मिलती है। और किसी एक प्रोडक्ट को आपने रिकरिंग डिपॉजिट्स में सेलेक्ट किया तो ये रिकरिंग डिपॉजिट्स वाली मेनू पे जाके आप देखते हैं तो सिर्फ उसी प्रोडक्ट कैटेगरी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा लोन्स। लोन्स में भी आपको ये कैटेगरी और नेम ऑफ द प्रोडक्ट ये सारे डिटेल्स देके आप डिटेल्स को फिल करना है। इसमें आपको ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन का डिटेल्स भी देना पड़ता है, क्योंकि इसकी हिसाब से आपको जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का जो मेनूस है वो सिर्फ उसी प्रोडक्ट्स की मेनू में ये सारी प्रोडक्ट्स आपको एनेबल हो जाएगा। और इसके हिसाब से आपको कोलैटरल डिटेल्स भी देना पड़ता है और इससे आप मल्टीपल कोलैटरल्स को भी ऐड कर सकते हैं। ये लास्ट है डन। आप एक बार ये डन बटन पे क्लिक किया तो इसका ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप दूसरी टाइम इसे लॉगिन करते हैं तो उस समय आपको ये ऑनबोर्डिंग स्क्रीन देखने को नहीं मिलती है और आप सीधा जो एक्चुअल डाटा कैप्चरिंग स्क्रीन पे रिडायरेक्ट हो जाएगा और उस स्क्रीन से आप जनरल आपकी इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को कैप्चर कर सकते हैं। ये ऑनबोर्डिंग जो है ये वन टाइम ऑपरेशन है और ये जो वन टाइम ऑपरेशन पे आप किस ऑप्शन पे किस प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया सिर्फ उसी ऑप्शन पे आपको वो प्रोडक्ट देखने को मिलती है। आप गलत से कुछ
इसे गलत से एंट्री किया तो इसका रोल बैक का ऑप्शन अभी नहीं है। अब ये है ऑनबोर्डिंग स्क्रीन, ये वन टाइम ऑपरेशन है और इसका रोल बैक ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा जो एक्चुअल डेटा कैप्चरिंग देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, आप एक बार ऑनबोर्डिंग को कंप्लीट किया, आपने लॉगिन पे क्लिक किया और ब्रांच भी सेलेक्ट कर लिया, तो आप एक बार प्रोसीड किया तो आप दोबारा वो ऑनबोर्डिंग वाली स्क्रीन पे नहीं जाते और आप सीधा ये डैशबोर्ड पे ये सारी डिटेल्स आप देखने को मिलती है। मतलब आप कैप्चर करना स्टार्ट किया तो उसकी कितनी रिकॉर्ड्स आपने कैप्चर किया और इसमें आपकी सुपरवाइजर कितने रिकॉर्ड्स को वेरीफाई किया और जो नेक्स्ट लेवल का जो यूजर है वो कितनी रिकॉर्ड्स को अप्रूव किया, ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती है। यहाँ लैंड डिटेल्स, लोन्स, शेयर्स और टर्म डिपॉजिट्स, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव सारी डिटेल्स। और आप व्यू ऑल भी देख सकते हैं, इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने कैप्चर किया होगा, उसी डिटेल्स आपको कितनी रिकॉर्ड्स कैप्चर किया, वेरीफाई हो गए, अप्रूव्ड हो गई, ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती है। यह डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड होने के बाद आपकी मेंबर डिटेल्स का स्क्रीन है और इससे आपकी वेरीफाई सर्च बटन है, वेरीफाई बटन भी है और आपकी जो मेंबर इंडिविजुअल मेंबर्स को ऐड करने का ऑप्शन इधर दी गई है। आप इंडिविजुअल, ग्रुप और इंस्टीट्यूशन तीनों को ऐड कर सकते हैं और आप एक बार एक रिकॉर्ड को कैप्चर करके उसको वेरीफाई किया तो दोबारा आपको एडिट या अप्रूव और डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, ये ग्रुप में मैंने किसी एक रिकॉर्ड को कैप्चर किया और अभी तक वेरीफाई नहीं किया, तो इसीलिए इसका एडिट और वेरीफाई की ऑप्शन और डिलीट का ऑप्शन भी मेरे को करने के लिए यहाँ दिखा रहा है। लेकिन मैंने एक बार वेरीफाई करते हैं ना, वो रिकॉर्ड को दोबारा मैंने एडिट नहीं कर सकता हूँ या डिलीट भी नहीं कर सकता हूँ, ये ध्यान से देखना है। आप एक बार रिकॉर्ड को वेरीफाई किया तो वो ऑप्शन आपको दोबारा एडिट करने का या डिलीट करने का आपको ये ऑप्शन यहाँ नहीं मिलेगा। और इंस्टीट्यूशन का भी सेम वैसे देख सकते हैं आप। ये है इंडिविजुअल स्क्रीन। इंडिविजुअल स्क्रीन में पहला आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है और किस मेंबर का आप अभी रिकॉर्ड्स कैप्चर कर रहे हैं उसी मेंबर का एडमिशन नंबर, नाम, उसका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, रिलेशनशिप क्या है, उसका फादर नेम है तो फादर सेलेक्ट करनी है और किसी का फीमेल है तो हस्बैंड का कर रहे हैं तो हस्बैंड रिलेशन सेलेक्ट करके उसकी नाम एंट्री करनी है। एडमिशन डेट और उसकी एज, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी सारी डिटेल्स देना है। एज या डेट ऑफ बर्थ किसी एक आपने एंट्री किया तो वो दूसरी आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा ऐसा। आपको एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। नहीं तो आपके पास एज है तो आप एज एंट्री कर दो, डेट ऑफ बर्थ अपने आप आ जाएगा। ये रिलीजन, कास्ट, तो उसकी लैंड क्या है और एड्रेस डिटेल्स और उसका विलेज क्या है। ये जो विलेज का लिस्ट जो आ रहा है ना, ये आप ऑनबोर्डिंग के समय कवर्ड विलेजेस का लिस्ट आपने ऐड किया, सिर्फ उसी लिस्ट से आपको इधर देखने को मिलती है। उस टाइम में आप किसी एक विलेज को मिस किया तो वो विलेज का नाम इस लिस्ट पे आपको नहीं देखने को मिलती है। और इसकी सारी डिटेल्स देना है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, लेजर फोलियो नंबर और शेयर बैलेंस जो भी है, ये सारी डिटेल्स देना है और उसको आप सेव कर सकते हैं। आप एक बार सेव पे क्लिक किया तो आप दोबारा बैक आ जाएगा। आपको बैक नहीं आने का और नेक्स्ट रिकॉर्ड को कैप्चर करना है तो आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो
एक रिकॉर्ड सेव हो जाएगा और दूसरी रिकॉर्ड कैप्चर करने के लिए आपको यह स्क्रीन दोबारा लोड होगा। ये इंडिविजुअल मेंबर्स का। और ग्रुप का तो आप यहाँ देख सकते हैं, इससे आपको ग्रुप टाइप मांगेगा और उसकी विलेज डिटेल्स यहाँ सेलेक्ट करनी है और नीचे आपको प्रमोटर्स डिटेल्स भी देना पड़ता है। प्रमोटर डिटेल्स में आपको किसी एक ये ग्रुप में जितनी मेंबर्स है वो ग्रुप का मेंबर्स की इंडिविजुअल डिटेल्स देना पड़ता है, मतलब उसकी डेट, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, विलेज, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी है डिटेल्स देना है। नेक्स्ट है हमारा इंस्टीट्यूशंस। यही सेम आपको ग्रुप तरह मिलेगा, लेकिन इसे आपको प्रोप्राइटरीशिप देना है, मतलब वो किसी एक इंस्टीट्यूशन रहती है ना, उसका प्रोप्राइटरीशिप क्या है, वो प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जो भी है इसे सेलेक्ट करनी है और इसकी रजिस्ट्रेशन डेट, पैन, जीएसटी, जो भी डिटेल्स आपके पास और नीचे उसकी प्रमोटर्स कौन है। दोनों माइक चाले मारो केम नहीं चलते। मीटिंग बची गई सर। हेलो टीम, अभी मतलब थोड़ा सा नेटवर्क इशू आया हुआ है। 1 सेकंड, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आया है, 2 मिनट रुकिएगा, सेशन विल रीस्टार्ट। जहाँ से रुका है वहां से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा टीम वापस ज्वाइन हुआ है। यस, कार्तिक जी, कार्तिक, आर यू कनेक्टेड? हेलो कार्तिक। Yeah, I'm connected. Yeah. Yes, please continue. Yeah, Karthik ji, your screen is visible. You can continue, please. Yeah, just a moment.
दूसरा ऑप्शन है हमारा मेंबर लैंड डिटेल्स। ये मेंबर लैंड डिटेल्स में आप देख सकते हैं एक इंडिविजुअल मेंबर की इंडिविजुअल सर्वे नंबर और वो सर्वे नंबर पे कितना लैंड उनको है वो सारी डिटेल्स देना है। और आप बाद में ये जो लैंड डिटेल के हिसाब से अपने मॉर्टगेज लैंड डिटेल्स या मॉर्टगेज पे किसी एक लोन दिया वो डिटेल्स यहाँ से आपको उधर देखने को मिलती हैं। इसीलिए आप पहला मेंबर लैंड डिटेल्स को कैप्चर करना है और बाद में यही लैंड डिटेल के हिसाब से आपको लोन भी कैप्चर करना पड़ता है। यहाँ आपको देखने को मिलती है व्यू, एडिट, वेरीफाई और डिलीट का ऑप्शन और आप ऐड भी कर सकते हैं। यह ऐड बटन है, ये पासबुक नंबर और खाता नंबर देना है। आप उसकी पासबुक नंबर सेलेक्ट करके बस एंट्री क्लिक करनी है, ये ऐड हो जाएगी और खाता नंबर आपके पास है तो उसको भी आप ऐसा ऐड कर सकते हैं। और यहाँ विलेज सेलेक्ट करनी है और विलेज के हिसाब से आपकी पासबुक नंबर क्या है वो सेलेक्ट करनी है और ये खाता नंबर सेलेक्ट करनी है और सर्वे नंबर और ये सारे डिटेल्स देके सेव करना है। ये है मेंबर लैंड डिटेल्स। आप सेव कर सकते हैं, नहीं तो सेव एंड कंटिन्यू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिमांड डिपॉजिट्स। इसमें भी आपको ऐड की ऑप्शन मिलेगा और एडिट और व्यू और डिलीट का भी ऑप्शन मिलेगा। लेकिन आप किसी रिकॉर्ड को एक बार वेरीफाई किया तो उसकी एडिट और डिलीट का ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ये एडिट स्क्रीन है और मेंबर को सिलेक्ट किया मैंने, ये प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट किया। आप ध्यान से देखो यहाँ जो प्रोडक्ट का लिस्ट आ रहा है ये लिस्ट हमको ऑनबोर्डिंग के समय किस प्रोडक्ट को किस ऑप्शन में आप सिलेक्ट किया बस उसी ऑप्शन पे आपको वही प्रोडक्ट देखने को मिलती है। और इसके अकाउंट नंबर क्या है, डेट ऑफ ओपनिंग मतलब ये डिपॉजिट कब शुरू किया, इसकी ऑपरेशन टाइप क्या है, जॉइंट होल्डर कौन है और इसकी बैलेंस और उसकी लेजर फुल नंबर, ये सारे डिटेल्स देना है और सेव करनी है। आप सेव या सेव एंड कंटिन्यू भी कर सकते हैं। दूसरा हमारा टर्म डिपॉजिट्स। टर्म डिपॉजिट्स में आपको व्यू, एडिट, डिलीट सारे ऑप्शन आपको मिलेगा। लेकिन आप एक रिकॉर्ड को एक बार आपने वेरीफाई पे क्लिक किया तो उसकी एडिट और डिलीट बटन आपको देखने को नहीं मिलती है। और यह है इसकी ऐड बटन और ऐड स्क्रीन में आपको प्रोडक्ट भी सिलेक्ट करनी है। ये होने के बाद आपकी अकाउंट नंबर, ऑपरेशन टाइप और ये जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंट अकाउंट डिटेल्स भी सिलेक्ट करनी है। वो डेट, वो फिक्स्ड डिपॉजिट कब का है और उसकी डिपॉजिट अमाउंट क्या है, वो उसकी पीरियड क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसकी मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी अमाउंट, ये सारे डिटेल्स देना है और सेव करना है। ये फिक्स्ड डिपॉजिट क्यूमुलेटिव, इसकी मतलब है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाली फिक्स्ड डिपॉजिट्स है। नेक्स्ट हमारा टर्म डिपॉजिट्स नॉन क्यूमुलेटिव। ये है आपकी इंडिविजुअल सिंपल इंटरेस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट्स। इसे आपको वेरीफाई, ऐड, व्यू, एडिट ऑप्शन भी आपको मिलेगा। लेकिन मैंने सारे रिकॉर्ड्स को वेरीफाई किया इसीलिए मेरे को अभी सिर्फ व्यू बटन दिखा रहे हैं। आप व्यू पे क्लिक किया तो उसकी इंडिविजुअल रिकॉर्ड का डिटेल्स देखने को मिलती है और इससे कुछ वैलिडेशंस है तो यहाँ देखने को मिलती है। इस रिकॉर्ड अभी तो कुछ वैलिडेशंस एरर्स नहीं है इसीलिए यहाँ 0 दिखा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं ये रिकॉर्ड है पार्शियली क्रिएटेड, मतलब इसमें कुछ वैलिडेशंस का मिस्टेक्स है। आप यहाँ देख सकते हैं ये व्यू कर दिया, मेरे को यहाँ एक ऑप्शन दिखा रहे हैं, मतलब इसका किसी एक वैलिडेशन गलत है। आप यहाँ देख सकते हैं डिपॉजिट डेट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एडमिशन डेट। इसकी मतलब ये है कि पहला मेंबर पीसीआरडीबी या एससीआरडीबी में एडमिट करते हैं, वो एडमिशन होने के बाद ही उनका डिपॉजिट हम लेते हैं। लेकिन यह कुछ गलत एंट्री हुआ, इसकी मतलब यह है कि डिपॉजिट डेट पहला हुआ उसके बाद उसकी एडमिशन हुआ, इसीलिए यहाँ दिखा रहे इसकी गलत करके। यहाँ आपको देख सकते हैं, ये देखो आपकी एडमिशन डेट 2001 है और इसकी डिपॉजिट डेट यहाँ ऐसी है। इन दोनों का वैलिडेशन यहाँ आपको देखने को मिलती है। ये टर्म डिपॉजिट्स क्यूमुलेटिव कंपाउंड वाली और ये सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट्स। यहाँ आपको ऐड, व्यू, एडिट, वेरीफाई और डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। आपको व्यू कर सकते हैं या एडिट भी कर सकते हैं।
यहाँ देख सकते हैं आप, इसे 3 वैलिडेशन मिस्टेक्स है, आप यहाँ देख सकते हैं, उसका कमेंट्स भी देख सकते हैं और उसकी फील्ड क्या क्या फील्ड्स है उसका भी देख सकते हैं, और सारे डिटेल्स देना है और सेव करनी है। नेक्स्ट है हमारा एजेंट डिटेल्स। ये एजेंट इसके लिए है किसी के पास डेली डिपॉजिट्स है, मतलब किसी एक ARDB या PCRDB जो भी है वो डेली डिपॉजिट्स का प्रोडक्ट चल रहा है, तो उसी के पास एजेंट जरूर होता। वो एजेंट डिटेल्स कैप्चर करने का स्क्रीन यह है कि इसे आप ऐड कर सकते हैं, मेंबर का सिलेक्ट करनी है और उसकी एजेंट नंबर क्या है वो देना है और ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। उसके लिए कुछ सिक्योरिटी लिया एजेंट के लिए तो वो ही सिलेक्ट करनी है, उसका अकाउंट नंबर देना है और लेजर फोलियो नंबर, और उसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेली डिपॉजिट्स। डेली डिपॉजिट्स का भी सेम एडिट, व्यू, डिलीट और वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ मेंबर सेलेक्ट करनी है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, और प्रोडक्ट के हिसाब से हम एजेंट का भी सेलेक्ट करना है। ये जो एजेंट है यहाँ इस स्क्रीन पे हमने ऐड किया, सिर्फ उसी लिस्ट यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ एजेंट को सिलेक्ट करनी है और बाकी डिटेल्स फिल करनी है, उसकी मैच्योरिटी डेट क्या है, उसका पीरियड क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये सारी डिटेल्स और सारे मैंडेटरी फील्ड सेव करके इसको सेव कर सकते हैं या सेव एंड कंटिन्यू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टर्म लोन्स। टर्म लोन्स में भी आपको बस सेम स्क्रीन मिलेगा, ऐड, वेरीफाई, व्यू, एडिट, वेरीफाई और डिलीट का। आप एडिट भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। ऐड क्लिक किया तो आपको ऐसे मिलेगा ऑप्शन, और ये सारी डिटेल्स आपने फिल करना होगा, क्योंकि उसका स्कीम क्या है, उसकी लोन के लिए पर्पस क्या है और उसका कोलैटरल टाइप क्या है, मतलब ये लोन किस सिक्योरिटी पे लिया कस्टमर को आपने दिया, मतलब उसको लैंड पे दिया या गोल्ड पे दिया या व्हीकल पे दिया, ये सारी डिटेल सेलेक्ट करनी है। और उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट IOD कितना है, आपकी आउटस्टैंडिंग डेट पे, आउटस्टैंडिंग मतलब आपकी कट ऑफ डेट पे ये लोन अकाउंट पे कितना प्रिंसिपल अभी बाकी है और कितना इंटरेस्ट बाकी है, ये 2 फील्ड्स देना है और सेव करना है। सेव किया तो आपको ऐसी स्क्रीन एक मिलेगा। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ डिसबर्समेंट कैप्चर करने की स्क्रीन मिलेगा। इसे आपको डिसबर्समेंट डेट देना है, डिसबर्समेंट अमाउंट देना है और क्यूमुलेटिव डिसबर्समेंट अमाउंट। ये क्यूमुलेटिव डिसबर्समेंट अमाउंट ये है कि आपके पास और किसी एक लोन पे आप मल्टीपल टाइम डिसबर्समेंट किया, तो दूसरी डिसबर्समेंट कंप्लीट होने के बाद आपका टोटल अभी तक कितना डिसबर्स किया। यहाँ नीचे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, ये मल्टीपल टाइम्स उनको डिसबर्स किया। पहला डिसबर्समेंट अमाउंट है 1000 रुपीज और उसकी क्यूमुलेटिव अमाउंट होगा 1000 रुपीज, और दोबारा मैंने और 1000 रुपीज उनको डिसबर्स किया और उसकी क्यूमुलेटिव या कंपाउंड या टोटल डिसबर्समेंट अमाउंट हुआ 2000 रुपीज, ऐसा कैप्चर करनी है। और आप सेव एंड कंटिन्यू भी कर सकते हैं। लास्ट का ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा कलेक्शन डिटेल्स। ये कलेक्शन डेट, टोटल इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट किया, चार्जेस कितना हुआ, IOD, पेनाल्टी और इंटरेस्ट कितना हुआ, प्रिंसिपल, ये सारे डिटेल्स देना है और सेव करना है। और आप यहाँ कैप्चर करते समय आप देख सकते हैं इससे कुछ वैलिडेशन मिस्टेक्स है, तो यहाँ आप देख सकते हैं उसकी प्रॉब्लम्स या उसके कमेंट्स क्या है आप देख सकते हैं। वो डेट वैलिडेशंस पे कुछ गलत है इसीलिए यहाँ दिखा रहा है, या अमाउंट बैलेंस पे कुछ कमेंट्स है तो आप देख सकते हैं यहाँ। ये टर्म डिपॉजिट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंपल इंटरेस्ट वाली लोन्स। यहाँ आप देख सकते हैं ऐड, व्यू, एडिट, वेरीफाई और डिलीट। आप ऐड करते तो मेंबर को सेलेक्ट करनी है, प्रोडक्ट को सेलेक्ट करनी है और बाकी चीज सेम रहती है, और एडिट किया तो भी सेम वैसी रहेगा और उसकी डिटेल्स आप दोबारा एडिट भी कर सकते हैं। ये ऐड कोलैटरल का स्क्रीन है, आप कोलैटरल के हिसाब से, मतलब यहाँ मैंने लैंड सेलेक्ट किया इसीलिए यहाँ लैंड डिटेल्स पूछ रहा है। आप किसी व्हीकल सेलेक्ट किया तो व्हीकल का डिटेल्स यहाँ पूछेगा, ये इंडिविजुअल लैंड डिटेल्स देना है और उसके हिसाब से लैंड डिटेल्स देके यहाँ सेव करनी है। और उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, पेनाल्टी, आउटस्टैंडिंग अभी तक कितना है, अभी तक मतलब वो कट ऑफ डेट पे कितना प्रिंसिपल बाकी है और कितना इंटरेस्ट बाकी है, ये सारी डिटेल्स देना है और सेव करनी है। दूसरा ऑप्शन है हमारा डिसबर्समेंट्स। डिसबर्समेंट्स में मैंने पहले बताया वो डिसबर्समेंट डेट क्या है, डिसबर्समेंट अमाउंट और
टोटल अभी तक कितना डिस्बर्स किया वो सारी डिटेल्स देना है और सेव करनी है। लास्ट है इसमें कलेक्शन, इसमें कलेक्शन डेट क्या है, कितना कलेक्ट किया, कितना चार्जेस हुआ, पेनाल्टी कितना है, इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल कितना है, ये सारी डिटेल्स देना है और सेव करनी है। और आपको यहाँ देखने को मिलती है कुछ वैलिडेशन मिस्टेक्स है तो आप सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ कमेंट देगा। ये सिंपल इंटरेस्ट का है। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, सेम वैसी रहेगा, ऐड बटन है और एडिट का है और वेरीफाई डिलीट का ऑप्शन भी देख सकते हैं आप। इसमें भी सेम वही ऑप्शंस मिलेगा आपको। कोलैटरल या देखो आप, मैंने इस लोन के लिए बॉन्ड पे दिया, इसीलिए कोलैटरल डिटेल्स पे आपको बॉन्ड की डिटेल्स ये पूछ रहे हैं। मतलब वो बॉन्ड टाइप क्या है, एफडी का बॉन्ड है, आरडी का बॉन्ड है, बॉन्ड नंबर क्या है, कब है, उसकी मैच्योरिटी क्या है, मैच्योरिटी अमाउंट क्या है, ये सारी डिटेल्स देना है। और नेक्स्ट है हमारा डिसबर्समेंट्स। डिसबर्समेंट्स में आपको देखने को है सेम डिसबर्समेंट डेट, अमाउंट और टोटल डिसबर्समेंट अमाउंट कितना हुआ, ये सारी डिटेल्स देना है। नेक्स्ट है हमारा कलेक्शंस। कलेक्शन में भी सेम उसी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं, उसकी कलेक्शन डेट, अमाउंट, चार्जेस, पेनाल्टी, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, ये सारी देना है। और आपके व्यू पे क्लिक किया, इसमें कुछ वैलिडेशंस मिस्टेक है तो सिस्टम अपने आप यहाँ कमेंट्स के रूप में आपको वो डिटेल्स दिखाएगा। नेक्स्ट है हमारा बोरोइंग्स। बोरोइंग्स आपको सेम लोन्स तरह मिलेगा, एप्लीकेशन, ड्रॉल और रिपेमेंट की ऑप्शंस पे। आप यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन लेवल पे सैंक्शन डेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अमाउंट कितना डिस्बर्स किया, अभी तक कितना बाकी है, मतलब आपकी आउटस्टैंडिंग कितनी है, ये सारे डिटेल्स देना है। और नेक्स्ट ड्रॉल कितना है, मतलब उसकी कितना अमाउंट आपने अभी तक ड्रा किया वो बोरोइंग के हिसाब से, उसकी डेट क्या है, कितना अमाउंट ड्रा किया, अभी तक कितना ड्रा किया, और उसकी लेजर फुली नंबर से 1 कंटिन्यू कर सकते हैं। और रीपेमेंट का डिटेल्स वैसे मिलेगा आपको, कब आपने वो बोरोइंग के लिए रीपे किया, उसकी टोटल अमाउंट क्या है, चार्जेस, पेनाल्टी, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, ये सारे डिटेल्स देना है और सेव करनी है। यहाँ भी आपको यहाँ देख सकते हैं कि इससे कुछ वैलिडेशन मिस्टेक्स है तो आप देख सकते हैं, ये सेव करनी है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन इन्वेस्टमेंट्स। आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स है तो आप इन्वेस्टमेंट्स का भी ऐड कर सकते हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट की ऐड करने के समय आपके पास मतलब इसमें कुछ एनालाइजर वैलिडेशंस कुछ है तो यहाँ आपको दिखेगा। ये ऐड स्क्रीन है, ये टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको ऐड कर सकते हैं। मतलब वो शेयर ने इन्वेस्ट किया, किसी एक सिंपल इंटरेस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट किया, नहीं तो रिकरिंग डिपॉजिट का डिपॉजिट किया, या किसी एक बॉन्ड आपने खरीद लिया, वो बॉन्ड की डिटेल्स यहाँ पूछेगा। आप डिपॉजिट सेलेक्ट किया तो डिपॉजिट डिटेल्स पूछेगा, शेयर सेलेक्ट किया तो शेयर्स की कितना शेयर्स परचेज किया, डिविडेंड अभी तक कितना मिला, ये सारे डिटेल्स देना है। ये इन्वेस्टमेंट्स है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट डेफिनेशन। ये प्रोडक्ट डेफिनेशन मतलब अभी तक हम कितनी प्रोडक्ट्स को इसमें ऑनबोर्ड किया और उसके हिसाब से एक एक इंडिविजुअल प्रोफाइल को कैप्चर किया। लेकिन अभी ये देना है कि उसकी मिनिमम अमाउंट क्या है, मैक्सिमम अमाउंट क्या है, उसका नॉमिनी डिटेल्स लेना है नहीं लेना है, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये सारे डिटेल्स यहाँ देना है प्रोडक्ट डेफिनेशन में। ये जो प्रोडक्ट डेफिनेशन है आगे वाली ईआरपी में आपको यूज होगा वैलिडेशंस के लिए। यह देख सकते हैं ये डिपॉजिट के लिए आपकी मिनिमम अमाउंट क्या है, मैक्सिमम बैलेंस क्या होता है, नॉमिनी चाहिए नहीं चाहिए, पैन कार्ड चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिलती है। ये सेविंग डिपॉजिट्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट्स का, या इसमें आपको एडिट कर सकते हैं और इसका इफेक्टिव कब से स्टार्ट हुआ और उसकी मिनिमम डिपॉजिट क्या होता है, मैक्सिमम डिपॉजिट पीरियड क्या होता है, इंटरेस्ट पेमेंट्स क्या है, और पैन कार्ड चाहिए नहीं चाहिए, ये सारी डिटेल्स देना है। नेक्स्ट है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट्स। यह देख सकते हैं ये डेट कब से ये प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ और उसकी पैन कार्ड चाहिए नहीं चाहिए, पेनाल्टी कितना होगा, और लोन दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, लोन है तो
लोन अमाउंट किससे देना है और उसकी परसेंटेज क्या है, ये सारे डिटेल्स। नेक्स्ट है हमारा लोन्स। लोन्स में भी आप यहाँ देख सकते हैं उसकी स्टार्ट डेट, एंड डेट, मिनिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट, एज लिमिट कितना होना है, और इसकी फील्ड वेरिफिकेशन चाहिए नहीं चाहिए, इंटरेस्ट पॉलिसी कैसा होना है, उसकी रिपेमेंट प्रोसीजर क्या है, एक्सेस पेमेंट्स आप एलो करते हैं या नहीं, और पोस्ट सैंक्शन डिटेल्स भी आप यहाँ देख सकते हैं। इससे आपको मिनिमम डेज कितना रखने का है डिमांड के लिए, और उसकी फोरक्लोजर आपको एलो किया तो फोरक्लोजर का पेनल्टी क्या होता है, और इंश्योरेंस चाहिए नहीं चाहिए, ये सारे डिटेल्स देना है। नेक्स्ट है हमारा कलेक्शन अपॉर्शन, मतलब आप किसी एक अमाउंट को कलेक्ट करते हैं, वो एडजस्टमेंट का ऑर्डर क्या होगा ये देना है, और इसको सबमिट कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट डेफिनेशन है। नेक्स्ट है हमारा ओबी समरी। ये ओबी समरी मैंने पहला आपको स्लाइड शो में दिखाया। वो जब आते हैं ना, ये सारी एनालाइजर रिपोर्ट में जो इश्यूज सिस्टम आपको दिखा रही है, ये सारी इश्यूज आपको पहला क्लियर करना पड़ता है। ये सारी डिटेल्स क्लियर करने के बाद ही आपको एक्चुअल ओबी समरी को जनरेट कर सकते हैं। वो ओबी समरी आपको मैं ये स्लाइड पे दिखाता हूं। यहाँ आप देख सकते हैं ये ओबी समरी है। इसे आपको नंबर ऑफ यह देख सकते हैं, ये आपने सारे एनालाइजर इश्यूज या वैलिडेशंस आपको सब क्लियर करना होगा। वो क्लियर करने के बाद आपको यह ओबी समरी दिखेगा कुछ ऐसा। इसे आपको आपकी बैलेंस शीट के हिसाब से कितना कस्टमर्स है या कितना नंबर ऑफ अकाउंट्स है वो इसे एंट्री करनी है। और ये जो 5 रिकॉर्ड्स यहाँ दिखा रहे हैं ना, ये हैं आपकी जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को कैप्चर करते हैं ना, उस समय आपको सारी वैलिडेशंस क्लियर करके कंप्लीट किया तो वो नंबर ऑफ काउंट और अमाउंट यहाँ दे देगा। और इससे कुछ अंतर है तो ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और अमाउंट डिफरेंस में आपको यहाँ अमाउंट दिखेगा, और इसके हिसाब से वो अंतर क्यों आया वो रीजन आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है, और इसकी ओबी समरी को फाइनलाइज करनी है। ये ओबी समरी का है। एक ओबी समरी कंप्लीट होने के बाद आपको साइन ऑफ करना है। वो साइन ऑफ जो नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा। अभी ये डीसीटी के कैप्चरिंग की स्क्रीन्स और उसकी डेमोन्स्ट्रेशन है। Ramesh, can you continue with ERP now? Yes, Karthik, thank you. Yes, Karthik, am I audible? Hello? Karthik, am I audible? Ramesh, you're not audible. Hello? Ramesh, you're not audible. Hello? I'm audible. 1 second. No? Am I audible now? Hello? Yes. Yeah, Ramesh, Karthik, you're audible.
या ठीक. Just a minute, I'll just share my screen once. Yeah, hope my screen is visible to everyone. Karthik, can you confirm once if my screen is visible? Yes, it is visible. Thank you. सभी को नमस्कार. मेरा नाम रमेश रेड्डी है एनयूएसवी से. एंड अभी तक आपने जो देखा था वो है डीसीटी का स्टेज. जो आप डीसीटी में जो भी आपका ओपनिंग बैलेंसेस है उसको आपको डीसीटी स्टेज में एंटर करना है. और इसके बाद जो करंट फाइनेंशियल ईयर का जो भी डाटा आपका है, मतलब ऑनगोइंग लेगेसी डाटा है, उसको आपको ईआरपी के अंदर एंटर करना है. तो अभी हम लॉगिन होने के बाद अपने पास मेंबर रिलेटेड मॉड्यूल्स एंड आपके जो हायर टायर में इन्वेस्टमेंट्स है या बोरोइंग्स जो आप बाहर से लेते हो उसके रिगार्डिंग एंड एफएस के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं. तो आप ईआरपी के अंदर कोई भी मॉड्यूल में एंट्री करने से पहले उसका पैरामीटर्स को सेट करना पड़ेगा. यानी कि जैसा अगर एग्जांपल सोचिए, अगर मेंबरशिप के बारे में बात करते हैं तो मेंबरशिप में क्या होता है, मिनिमम एज मैक्सिमम एज होता है. अगर वो वोटर लिस्ट भी इधर से जनरेट करो तो वोटर लिस्ट भी आपको उसका भी पैरामीटर सेट करना पड़ेगा. एंड शेयर कैपिटल कितना रहना है, मिनिमम एक शेयर का वैल्यू कितना है, मैक्सिमम कितना है. सो ये वाले जो पैरामीटर्स होते हैं ये आपको पहले कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट से सेट करना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको यहाँ पे राइट से टॉप कॉर्नर में लॉगिन के बाजू में आपको कॉन्फ़िगरेशन का एक आइकॉन दिया गया है. इस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आपको मेंबरशिप विजिबल होता है. यहाँ पे कस्टमर पैरामीटर्स रहेंगे, मॉड्यूल अदर चार्जेस, मतलब अगर आप एडमिशन के मेंबर को एडमिट करते टाइम, आप सोसाइटी का मेंबर बनाते टाइम आप उसका कोई एडमिशन चार्जेस ले रहे हो या फिर कोई अन्य चार्जेस उसके पास से ले रहे हो तो आपको यहाँ से मैप करके उस चार्जेस को भी आपके इनकम में लेके जाना का सुविधा हमने यहाँ पे दिया है. एंड डिविडेंड परसेंटेज, अगर आपका सोसाइटी प्रॉफिट में है एंड उस डिविडेंड को तो मेंबर्स के साथ शेयर करना है तो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितना डिविडेंड आपको परसेंटेज मेंबर्स को देना है उसको इधर डिफाइन करना पड़ेगा. एंड मॉड्यूल में जाके आप उस पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से मेंबर्स का शेयर बैलेंस पे आधारित उसका जो भी प्रॉफिट बनता है या फिर सॉरी उनका जो डिविडेंड का हिस्सा होता है वो उसका रिपोर्ट आपको मिल जाएगा. एंड कस्टमर पैरामीटर्स में देखिए आपको ऐसा मिनिमम एज मैक्सिमम एज आपको नॉमिनी कंपलसरी रखना है. आप जो सोसाइटी में एडमिशन नंबर मेंटेन कर रहे हैं, मतलब आपके जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में फिलहाल जो एडमिशन नंबर है उसको सिस्टम में मैंडेटरी रखना है या नहीं रखना है. आधार कार्ड मैचिंग एंड चाहिए कि नहीं. डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम एज से डायरेक्ट ऑटोमेटिक जाना है कि नहीं. नेम डिस्प्ले का सीक्वेंस, लास्ट नेम फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम लिखना है या फिर फर्स्ट नेम मिडिल नेम एंड लास्ट नेम उसके हिसाब से आपको दिखाना है. जो भी आपका बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स के हिसाब से आप यहाँ पे सीक्वेंस को सेट कर सकते हो. 231 123 123 132 ऐसा कुछ भी जो आपको फिजिबल है वो कर सकते हो. एंड लैंड यूनिट्स हेक्टर्स में या एकर्स में जो भी है आपको वहाँ पे देना, यहाँ पे ऑलरेडी फ्रीज रहेगा ये. एंड एक मेंबर का मैक्सिमम लैंड कितना रहना है उसका भी आप लोग यहाँ पे मतलब पैरामीटर सेट कर सकते हो. अगर नॉमिनल मेंबर जो बी क्लास मेंबर होते हैं उनका भी लैंड आपको ऐड करना है तो उसके लिए भी हमने एक पैरामीटर दे रखा है यहाँ पे. लैंड मेजरमेंट सब यूनिट्स जो भी आपको सब यूनिट है उसके हिसाब से वो तो प्रीफिक्स रहेगा. एंड शेयर बैलेंस पर मेंबर, मतलब ये ए क्लास मेंबर को कितना मिनिमम शेयर क्या है मैक्सिमम शेयर क्या है ये रखना है. एंड इंडिविजुअल शेयर मैक्सिमम इंडिविजुअल शेयर बैलेंस फॉर मेंबर्स एंड टोटल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. सो ऐसे जो भी आपको पैरामीटर्स है उस पैरामीटर्स के हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा. सॉरी, आपका जो सोसाइटी में काम होता है, मतलब आपका जो ARDB PCRDB या SCRDB में जो भी पैरामीटर्स पे बेस होके मेंबर का कैलकुलेशन होता है
उसको आपको सभी मॉड्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट से आपको करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हैं आप, मेंबरशिप है आपके लिए, लोन्स है आपको, डिपॉजिट यानी कि पिक में सेविंग डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट मतलब मेंबर का जो डिपॉजिट आपके पास रखते हैं उसका है, एंड बोरोइंग्स है। इन्वेस्टमेंट का तो जो आपके पास बॉन्ड रहेगा उसके बेसिस पे आप वहाँ पे डाटा कैप्चर कर पाओगे। तो अभी देखते हैं मॉड्यूल में अपने पास क्या क्या सुविधा अवेलेबल है। एंड यहाँ पे मेंबरशिप में जाएंगे तो आप मेंबरशिप में देख सकते हैं आपके पास एनरोल मेंबर ऑप्शन है, अदर डिटेल्स का ऑप्शन है, अदर रजिस्टर लैंड का भी ऑप्शन है, शेयर डिपॉजिट है, शेयर विड्रॉल है, एंड डिविडेंड। मैंने डिविडेंड का जो पैरामीटर बताया था उसके हिसाब से सिस्टम कैलकुलेट करके आपको एक रिपोर्ट दिखाएगा, एंड उसके हिसाब से आप पोस्ट भी कर सकते हो और अन्यथा उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। एंड उसके बाद मेंबर का जो भी मेंबर अगर डिसीज हो गया या फिर मेंबरशिप किसी को ट्रांसफ़र करना है, ऐसा कुछ करना है, तो आपको यहाँ पे मेंबरशिप को पहले क्लोजर करना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग मेंबर है आपका उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो मेंबर क्लोजर के लिए ये ज़रूरी है कि उसका जो भी अकाउंट्स आपके पास है वो लाइव रहना नहीं चाहिए। सभी जो बाकी अकाउंट्स है, सेविंग्स अकाउंट हो या टर्म डिपॉजिट हो या लोन्स हो या शेयर बैलेंस हो, ये सभी बैलेंसेस अकाउंट्स में से ज़ीरो रहना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद ही ये वाला जो आपको फीचर है मेंबरशिप क्लोजर है वो मतलब आपको अलाउ करेगा मेंबरशिप को क्लोज करने के लिए, नहीं तो आपको मेंबरशिप क्लोजर के लिए सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। तो रजिस्टर लैंड में जाएंगे तो पहले एनरोल मेंबर में जाएंगे तो आपको नॉर्मल बेसिक डिटेल्स ऑफ मेंबर जो भी है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। कस्टमर टाइप जो भी मेंबर, नॉर्मल मेंबर, ऑर्गेनाइजेशन जैसा डीसीटी में था वैसे ही, एंड यहाँ पे भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, एंड आधार नंबर, एंड नाम, आधार पे आपका नाम क्या है, क्योंकि ये आपका बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में तो अलग रहा होगा एंड आधार में अलग रहा होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे दिया है। तो डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, जो भी आपका मतलब बेसिक डिटेल्स जो भी है आपको यहाँ पे सभी डिटेल्स को फिलअप करना होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में है एड्रेस डिटेल्स, थर्ड स्टेप में आपको नॉमिनी डिटेल्स भरना होगा। अगर आपके पास माइनर का भी मेंबरशिप चलता है तो आपको नॉमिनी स्किप करके गार्डियन डिटेल्स एंटर करना पड़ेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप जाता है, पहले मेंबरशिप का जनरल डिटेल्स भरना है या फिर बाद में एड्रेस, फिर बाद में नॉमिनी, फिर बाद में गार्डियन डिटेल्स। तो ये है मेंबरशिप एनरोलमेंट। एंड इसके बाद आपको आइडेंटिटी डिटेल्स में मिल जाता है आपका केवाईसी डिटेल्स भरने के लिए। जो भी मेंबर का आपको कोई डिटेल्स भरना है तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक, एडमिशन नंबर डाल के प्लस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आइडेंटिटी, एड्रेस एंड आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ है। अब मैं आपको आइडेंटिटी में क्या क्या मतलब सभी में सेम रहेंगे, तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो, NPR लेटर ले सकते हो, नरेगा जॉब कार्ड ले सकते हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट ID, वोटर ID, जो भी आपको आप इधर सबमिट करना चाहते हो उसके हिसाब से आपको इसको सेलेक्ट करके इश्यूड बाई वॉट एवर द अथॉरिटी वो डालना पड़ेगा। वैलिडेशन, वैलिड अप टू कब तक है वो डालना है, और उस प्रूफ का जो ID नंबर है उसको डालना पड़ेगा। ठीक है। सो दिस इज द आइडेंटिटी डिटेल्स आपको जो डालना है। एंड लैंड डिटेल्स में जैसा आपको DCT में बताया गया था उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको अगर कोई न्यू मेंबर आ रहा है DCT के बाद में तो उस मेंबर का जो भी लैंड डिटेल्स है उसको डालने के लिए हमने यहाँ पे रजिस्टर लैंड का भी सुविधा दे रखी है। एंड अगर आपको शेयर डिपॉजिट करना है या विड्रॉल करना है तो इस दो स्क्रीन्स को यूज़ कर सकते हो। एंड इस मॉड्यूल के प्रति जो भी रिपोर्ट्स आपको देखना है तो सारे मॉड्यूल्स का जो भी रिपोर्ट्स होते हैं वो मॉड्यूल के अंदर जाने के बाद राइट साइड टॉप कॉर्नर में आपको मिल जाएंगे। चाहे वो स्टेटमेंट देखना हो, शेयर बैलेंस देखना हो, लैंड डिटेल्स देखना हो, डिविडेंड समरी देखना है, जो भी आपको डिटेल्स देखना है वो आपको हर मॉड्यूल के अंदर राइट साइड टॉप कॉर्नर में मिल जाएंगे। सो ये है अपना मेंबरशिप। उसी प्रकार आपको लोन्स में जाएंगे तो लोन्स में आपको जो लोन एप्लीकेशन है, ये ऊपर वाला जो प्रोसीजर है, अगर कोई क्रॉप लोन्स दे रहे हैं मतलब क्रॉप के प्रति आप लोन दे रहे हैं तो आप लैंड डिक्लेरेशन, क्रेडिट लिमिट, ड्रॉल, सैंक्शन एंड लोन डिसबर्समेंट यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर कोई आप MTLT लोन्स या फिर अदर डिपॉजिट लोन्स दे रहे हो, गोल्ड लोन दे रहे हो या व्हीकल लोन ऐसा कुछ दे रहे हो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा लोन एप्लीकेशन प्रोसीजर। लोन एप्लीकेशन करना पड़ेगा पहले, सैंक्शन अदर्स करना पड़ेगा, फिर जाके डिसबर्समेंट होगा। MTLT लोन का जो भी रीपेमेंट चार्ट है आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो डिमांड का ऑप्शन दिया है इसमें दो ऑप्शन है।
अगर कोई मेंबर आपके पास आके मेरा इंडिविजुअल डिमांड एज ऑन डेट या फिर ड्यू डेट तक या फिर कोई पर्टिकुलर डेट बता के उस डेट तक अगर उसको देखना है तो आप यहाँ पे उसको भी दिखा सकते हो। एंड अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अगर समझे यमटी लोन्स में प्लांटेशन का कुछ लोन है, मतलब कुछ लोन्स है, प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट के अंदर कितने लोन्स आपका है एंड उसका प्रिंसिपल क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ये सारे डिटेल्स देखने के लिए आपको ग्रुप डिमांड का जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया उसका उपयोग कर सकते हो। एंड उसके बाद अगर कोई मेंबर लोन रिपेमेंट करने आ रहा है तो आप लोन कलेक्शन के ऊपर जाके आप लोन कलेक्शन कर सकते हो। इसमें आपको जो भी प्रिंसिपल है या फिर इंटरेस्ट है, कोई अदर चार्जेस है, तो पहले ही मैप करना पड़ेगा, जैसा मैंने पहले बताया था कॉन्फ़िगरेशन में होगा। उसको मैप करने के बाद आप लोन कलेक्शन कर सकते हो। प्रिंसिपल, इंटरेस्ट जो भी आपको पेनल है तो पेनल, ये सब डिपेंड करता है। आप जो इंटरेस्ट पॉलिसीज डिफाइन करते हो, ड्यू डेट मास्टर सेटअप करते हो, तो उसके बेसिस पे ही ये वाला जो कैलकुलेशन आएंगे। प्रिंसिपल रहेगा, इंटरेस्ट कितना चाहिए, कितना चार्ज होना है, आज कलेक्शन कर रहे हो तो आज का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है या कल तक का कैलकुलेट होना है, तो उस काइंड ऑफ पैरामीटर्स को आपको सेटअप कर लेना पड़ेगा। एंड डिफॉल्टर्स का एक सिंगल रिपोर्ट आपको चाहिए तो आप डिफॉल्टर्स को यहाँ से जनरेट कर सकते हो और उसका नोटिस भी दे सकते हो कि आपका जो डिफॉल्टर बना है तो उसको रिपेमेंट करने के लिए, ऐसा भी सर्कुलेट करने के लिए भी अपने पास सुविधा दे रखी है। एंड लीगल एक्शन, अगर कोई मेंबर आपका जो कोई भी लोन वापस पे नहीं करता है एंड उसका ऊपर आप कोई लीगल एक्शन लेते हो, उसके प्रति जो भी कार्रवाई चली है या फिर उसमें कोई खर्चा लगा है, उस सब भी चीज़ों को आप लीगल एक्शन के जो स्क्रीन दिया है यहाँ पे, उसमें जाके आप उस डिटेल्स को रजिस्टर कर सकते हो। तो ये अपना लोन मॉड्यूल है, इसका भी जो भी रिपोर्ट्स होंगे वो राइट से टॉप कॉर्नर में आपको मिल जाएंगे। एंड सेविंग डिपॉजिट, अगर आपका डीसीटी में आपने अगर कोई एप्लीकेशन ऑलरेडी डाल रखी है तो आपको एप्लीकेशंस को स्किप कर सकते हो। अगर कोई नया मेंबर आया है एंड उसका नया सेविंग अकाउंट क्रिएट करना है, एक मेंबर को मल्टीपल अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो, वो भी सुविधा अपने पास अवेलेबल है। एंड उसके बाद अगर कोई नया नंबर आ रहा है तो एप्लीकेशन करोगे पहले, उसमें कौन सा सेविंग्स में भी मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स रहते हैं आपको, तो उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हो डीसीटी के स्टेज में भी। तो उसके बाद एप्लीकेशन डालोगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके, फिर उसके बाद डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट, आपको अगर विड्रॉ करना है तो विड्रॉल। एडमिशन नंबर डालते हैं हम, वोचर टाइप ट्रांसफ़र या जो भी कैश है ट्रांसफ़र है या कोई डिफ़ॉल्ट ट्रांसफ़र कहीं जा रहा है तो उसके हिसाब से आपको दिखेगा। यहाँ पे उसका अकाउंट में बैलेंस कितना है दिखेगा एंड उसके बाद आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे कि कितना डिपॉजिट कर रहे हैं आप। एंड उसके बाद जो नरेशन होगा यहाँ पे, ये नरेशन ऑटोमेटिक बिल्ड होगा एंड उसमें भी आपको कुछ ऐड करना है तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हो। इट इज़ एडिटेबल, मतलब उसको एडिट करके आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो विड्रॉल भी सेम, आपको जो भी वोचर टाइप विड्रॉल में कैश या ट्रांसफर में जो भी आपको करना है तो विड्रॉल कर सकते हैं यहाँ से। एंड इंटरेस्ट पोस्टिंग, आपको अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करके दे सकते हो। इसका भी मैंने जैसे बताया आपको यहाँ पे प्रोडक्ट डेफिनेशन में देना पड़ेगा आपको डिटेल्स कि कितना परसेंटेज है। डॉर्मेंट अकाउंट पे भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो उस जो भी पर्टिकुलर पैरामीटर्स है वो पहले प्रीफिक्स डिफाइन आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये इंटरेस्ट पोस्टिंग है। अगर क्लोजर करना है सेम लाइक आपको जो भी क्लोजर है तो यहाँ से क्लोजर हो जाएगा, उसका जो अमाउंट है वो विड्रॉ करके क्लोजर कर सकते हो। सो ये है सेविंग मॉड्यूल, इसका भी सेम रिपोर्ट्स आपको राइट से टॉप कॉर्नर में मिल जाएंगे। एक मिनट।
तो हम अभी टर्म डिपॉजिट देखते हैं। टर्म डिपॉजिट मतलब आपका जो मेंबर का फिक्स्ड डिपॉजिट होता है वही फिक्स्ड डिपॉजिट को हम टर्म डिपॉजिट कहते हैं यहाँ पे। तो उसका भी सेम है, अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो उसका जो भी इंटरेस्ट पेमेंट्स करना है या फोरक्लोजर या क्लोजर कर सकते हो। आरडी है तो उसका इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर सकते हो। तो चेक करना पड़ेगा, सेम लाइक सेविंग डिपॉजिट, उसको भी पहले एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन मतलब एप्लीकेशन के प्रति जो भी आप अमाउंट जमा कर रहे हो उसको ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करेंगे। आरडी है तो नेक्स्ट मंथ में इंस्टॉलमेंट में जाके इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे। अगर नॉन कुमुलेटिव डिपॉजिट है एंड आप मंथली पेमेंट उसको मतलब मेंबर को पेमेंट इंटरेस्ट पेमेंट करते हो तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट्स का ऑप्शन है, तो उसमें जाके आप इंटरेस्ट को पेमेंट मेंबर को कर सकते हैं। एंड कोई रेन्यूअल करना है, अगर मैच्योर हो गया उसको रेन्यूअल करना है तो रेन्यूअल भी कर सकते हो, या उसके पहले ही मैच्योरिटी के पहले ही रेन्यूअल मतलब उसका क्लोजर करना है तो आप टर्म फोरक्लोजर कर सकते हो। ये सब आपको जो डीसीटी में आपने जो पैरामीटर्स डिफाइन किया है उधर भी कर सकते हो। एंड ईआरपी में आने के बाद ये साल के लिए अगर कुछ चेंजेस हुआ है तो उसको आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके उसके हिसाब से इंटरेस्ट पॉलिसीज जो भी आपके पॉलिसीज पैरामीटर्स है उसको आप सेटअप कर सकते हो। एंड उसी प्रकार आपको यहाँ पे फोरक्लोजर में जो भी पेनल्टी आपने डिसाइड किया उसके प्रति पेनल्टी चार्ज होगा एंड बाकी वाला जो पेमेंट है उसको हम पेमेंट करते हैं। एंड सेम आपको क्लोजर होगा, अगर उस मेंबर का डिपॉजिट मैच्योर हो गया तो आप टर्म क्लोजर भी यहाँ से कर सकते हो। एंड अगर कोई एप्लीकेशन आपने डाल दिया एंड उसको भूल गए या फिर गलती से उसका कुछ डिटेल्स गलत डल गए तो आपको एप्लीकेशन को कैंसिल करने का भी सुविधा यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड में नीचे दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे जो भी होंगे ये मेजर होंगे एंड यहाँ पे जो होंगे यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे जैसे इंटरेस्ट पोस्टिंग का, रिसीव आर्ट इंस्टॉलमेंट। सो यहाँ से भी आप जा सकते हो, मतलब हर बार आपको स्क्रीन में डैशबोर्ड में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स दिया गया है, आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। डैशबोर्ड में जाने से पहले भी यहाँ पे भी आप डायरेक्टली अगर मेंबरशिप में जाना है तो मेंबरशिप, लोन में जाना है तो लोन, सेविंग में जाना है तो सेविंग में यहाँ से भी आप नेविगेट कर सकते हो। एंड इसका भी सेम है, रिपोर्ट्स आपको सबका रिपोर्ट साइड से टॉप कॉर्नर में मिल जाएंगे। एंड अभी बोरोइंग्स देखते हैं और सॉरी इन्वेस्टमेंट देखते हैं। इन्वेस्टमेंट एंड टर्म डिपॉजिट जो है वो बहुत सिमिलर है, यानी कि आप एप्लीकेशन डालोगे सेम ट्रांजैक्शन, बट वहाँ पे हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे थे क्योंकि मेंबर ने मेरे पास मतलब यानी कि एआरडीबी के पास डिपॉजिट रखा है तो मेंबर को मैं पे आउट कर रहा हूँ इंटरेस्ट। बट यहाँ पे मैंने बाहर का ही इन्वेस्टमेंट किया है अदर इंस्टीट्यूशंस में, तो इंटरेस्ट मुझे आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट में जाके आपको रिसीव इंटरेस्ट मिलेगा। अगर रिन्यूअल हुआ है तो रिन्यूअल कर सकते हो, अगर फोरक्लोजर या क्लोजर हुआ तो उसके हिसाब से आप फोरक्लोजर एंड क्लोजर भी कर सकते हो। अगर वो एआरडीबी ने शेयर परचेज किया तो उसका भी एप्लीकेशन डालना होगा, शेयर परचेज कर सकते हो एंड रिडीम कर सकते हो। एंड शेयर्स में अगर एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करना है तो फिर शेयर परचेज में जाके उसका एक्स्ट्रा अमाउंट जितना भी आप एक्स्ट्रा शेयर्स जो भी है आप उधर परचेज कर सकते हो। तो ये है आपका इन्वेस्टमेंट स्क्रीन है। इसका जो भी इंटरेस्ट पोस्टिंग्स वगैरह है तो यहाँ पे से आप कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट क्लोजर भी कर सकते हो। एंड बोरोइंग्स, अगर बोरोइंग आप एआरडीबी कहीं से मतलब हायर टायर से बोरो कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी अकाउंट है उसको अकाउंट क्रिएशन करना पड़ेगा एंड उसके हिसाब से डिसबर्समेंट जब भी आप अमाउंट लेते हैं उनके पास से तो वो डिसबर्समेंट करना पड़ेगा उसको। एंड अगर उसको रीपेमेंट आप कर रहे हो तो जाके कलेक्शंस में जाके उसको रीपेमेंट करना पड़ेगा। एंड आपको इसी के हिसाब से जो भी डिसबर्समेंट आप करते हो उसके हिसाब से आपको रीपेमेंट का भी चार्ट मिल जाएगा। अकाउंट क्रिएशन में आपको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सैंक्शन कब है, डिसबर्समेंट कब कब हुआ है एंड रीपेमेंट टाइप क्या है, रीपेमेंट मोड क्या है, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे पहले ही डालना पड़ेगा। उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट, पिनल इंटरेस्ट एंड आईबोए जितना भी इंटरेस्ट ऑन एरियर्स जितना भी है आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंड आपका सैंक्शन अमाउंट अगर ये साल में 10 लाख था एंड आपने उस पूरा लिमिट को कंप्लीट कर लिया तो फिर से आपने आपका लिमिट सैंक्शन लिमिट बढ़ाने के लिए कुछ एप्लीकेशन दिया एंड उन्होंने 20 लाख बना दिया उसको, तो आप यहाँ पे अपडेट बोरोइंग लोन डिटेल्स में जाके यहाँ पे जो अप्लाइड अमाउंट है तो उसको आप बढ़ा सकते हो, तो सैंक्शन अमाउंट भी आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ से सैंक्शन अमाउंट आप एडिटेबल कर सकते हो आगे जाके जब आपका लिमिट ख़त्म हो जाता है।
तो ये है लोन एप्लीकेशन, सॉरी बोरोइंग्स का। एंड अभी देखते हैं एफएएस। तो एफएएस में क्या है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं मॉड्यूल रिसीट, मॉड्यूल पेमेंट, कैश रिसीट, कैश पेमेंट, अदर ट्रांसफर। तो मैं नीचे से एक बार ऊपर तक बता देता हूँ। तो अदर ट्रांसफर्स में क्या रहता है, आपको अगर कोई अकाउंट टू अकाउंट कोई ट्रांसफर कर रहे हैं आप, ओके, अगर समझिए कोई एक सेविंग अकाउंट से दूसरे सेविंग अकाउंट में, या फिर सैलरी अकाउंट से कोई सेविंग अकाउंट में, या फिर कोई सप्लायर को पेमेंट कर रहे हो, तो उस हिसाब से जो भी आपने अकाउंट्स या लेजर्स बना के रखा है वो सब यहाँ पे होंगे। तो जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है डेबिट कर सकते हैं, उसके हिसाब से क्रेडिट, सॉरी क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट, डेबिट हो रहा है तो डेबिट यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये है आपका अदर ट्रांसफर का स्क्रीन है। अगर कोई कैश में रिसीट आ रहा है तो कैश में मतलब आपको इनकम आ रहा है तो कैश में रिसीट ले सकते हो। कैश में पेमेंट हो रहा है तो यहाँ से कैश का पेमेंट का वोचर भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। मॉड्यूल पेमेंट, मॉड्यूल रिसिप्ट, यानी कि एक पर्टिकुलर मेंबर का अगर मेंबरशिप है, सेविंग डिपॉजिट है एंड लोन भी है, तो उनका अगर रिसीट्स आ रहा है तो मॉड्यूल रिसिप्ट में जाके उनका सारे मॉड्यूल्स का जो भी ट्रांजैक्शन है सिंगल जगह पे आप यहाँ से कर सकते हो। सेम अगर वो उसको पेमेंट बाहर दे रहे हो, मतलब उस मेंबर को लोन डिसबर्स कर रहे हो या फिर उस मेंबर को विड्रॉल दे रहे हो, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे मॉड्यूल पेमेंट यूज़ करके उनका अगर 4 मॉड्यूल में वो अकाउंट आपके पास मेंटेन कर रहा है तो वो चारों मॉड्यूल को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। एंड पास वोचर स्क्रीन मतलब आपने जो भी वोचर्स प्रिपेयर किया, मेकर चेकर कॉन्सेप्ट है ये। आप एक मेकर रहेगा एंड एक चेकर रहेगा, तो जो पास वोचर स्क्रीन रहेगा उसमें चेकर के लिए आपको वोचर पोस्टिंग का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे जो वो पेंडिंग वोचर्स है उस पर्टिकुलर डेट में यहाँ पे दिखेंगे। एंड उस वोचर को सेलेक्ट करते ही डेबिट एंड क्रेडिट डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगे आपको, एंड उसको आप यहाँ से पोस्ट करने की सुविधा दिया है। तो ये आपका पास वोचर स्क्रीन है। एंड आपका वोचर्स अगर एक दिन पर्टिकुलर डेट में, जैसा बैंक में भी होता है, शाम तक जो भी वोचर्स हुआ है उन सबको पिन करके कहीं एक जगह पे रखते हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे जो सिस्टम में एंटर्ड वोचर्स है आपको प्रिंट करना है, तो यहाँ से आप पर्टिकुलर डेट या फिर मल्टीपल डेट सेलेक्ट करके भी आप प्रिंट वोचर में प्रिंट करके उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो। एंड स्क्रॉल बुक, डे बुक, आपको कोई स्क्रॉल बुक देखना है, स्क्रॉल बुक या फिर डे बुक में देखना है, तो डे बुक में आपको यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस आपने मेकर चेकर कॉन्सेप्ट करने के बाद जनरेट किया है तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एंड सारा पूरे दिन का ट्रांजैक्शंस होने के बाद, सारा रिसिप्ट पेमेंट्स चेक करने के बाद जो भी आपको डे एंड करना है तो यहाँ से आप डे एंड भी कर सकते हो। एंड इसका भी जो रिपोर्ट्स होते हैं, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम के जो भी रिपोर्ट्स होते हैं आपको यहाँ पे राइट से टॉप कॉर्नर में मिल जाएंगे। ओपनिंग ट्रायल बैलेंस या फिर डे बुक देखना है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स, ट्रायल बैलेंस बिफोर डे एंड, ट्रेडिंग अकाउंट बिफोर डे एंड या फिर आफ्टर डे एंड देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, बैलेंस शीट जनरेट कर सकते हो। एंड जनरल लेजर प्रिपेयर हो जाएगा, रिसीट्स एंड पेमेंट्स, ट्रायल बैलेंस, तो ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पे एफएएस से ले सकते हो। एंड यहाँ पे एफएएस में और एक ऑप्शन जो है अपना चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में लायबिलिटी, एसेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ पे आपको दिखेंगे। इसके प्रति जो भी हेड ऑफ अकाउंट जो मेजर लेजर्स हैं हमने ऑलरेडी मैप कर रखी है, तो इसमें से आपको अगर लगता है कि कुछ और लेजर्स का आवश्यकता है या फिर कुछ लेजर के अंदर कुछ कॉमन अकाउंट्स आपको ऐड करना पड़ेगा, वैसा कुछ चाहिए तो आप फ्रंट से ही आप जनरेट भी कर सकते हो। जैसा कि मैं समझे एस्टेब्लिशमेंट या अदर एक्सपेंडिचर में जाके प्रिंटिंग है मेरा, प्रिंटिंग एंड पोस्टल चार्जेस, तो मैं इसको एक बार सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा तो क्रिएट का ऑप्शन आएगा। मुझे जो भी अकाउंट क्रिएट करना है मैं अकाउंट सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो भी अकाउंट मेरे नाम में कुछ जो भी नाम से सेलेक्ट करना है तो उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। एंड इसके प्रति इसको इस अकाउंट से पेमेंट करना है तो पेमेंट कर सकता हूँ, इसमें रिसिप्ट आ रहा है तो रिसिप्ट भी ले सकता हूँ। तो ये मतलब ये एक्सपेंडिचर है तो आप पेमेंट कर सकते हो इसमें से। अगर रिसिप्ट आ रहा है तो इनकम में जाके आपको इनकम में अदर इनकम का भी सुविधा है। ये वाले तो ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड ऑल, ये तो मॉड्यूल से मैप्ड है। उसके बाद में अगर दूसरा भी अलग से मतलब अलग आपको भी ये वाला मिल जाएंगे ना, मतलब सॉरी इनकम अदर रहेगा, मतलब अदर मिसलेनियस हो या फिर अदर इनकम सोर्सेस हो, तो यहाँ पे भी आप लेजर्स एंड सॉरी अकाउंट्स क्रिएट करके उसके पर डिटेल्स एंटर कर सकते हो। ठीक है।
सो यहाँ पे आप अकाउंट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, जो भी आपको हेड ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करना है। एंड एसेट पे प्रति भी ऑलरेडी फिक्स्ड एसेट या फिर अदर फिक्स्ड एसेट जो भी है आपके हिसाब से, उसको भी आप यहाँ पे से कर सकते हो। एंड सन्डे डेबिटर अकाउंट्स, क्रेडिटर अकाउंट्स अभी भी आपको ऑलरेडी अवेलेबल मैप किया गया है, तो उसके हिसाब से आप लोग मतलब जो भी अकाउंट्स क्रिएट करना है उसके अंदर भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। तो अपना इसमें से जो सभी होने के बाद आपको ऑडिट का मॉड्यूल भी इसी में मिल जाता है। तो ये अपना जो भी आपका ईआरपी के अंदर जो भी मॉड्यूल्स एआरडीबी किया जा रहे हैं उसको उसका ब्रीफ है। तो इसमें आपको भी क्या, आई थिंक ऑलरेडी ईआरपी लॉगिन्स के पास है, अगर आपको नया दूसरा भी चाहिए ऑलरेडी आई थिंक एसपीएम टीम्स के पास लॉगिन्स है, बट अगर चाहिए तो अलग से, मतलब अगर किसी कोई भी स्टेट के पास ना ही है तो वो उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका सिटी एंड ईआरपी फॉर एआरडीबीज। सो रजनीश, कैन यू जस्ट प्लीज pitch in? Yeah, thank you, Ramesh ji. So, I think this was it from MinUSV team regarding demonstration of DCT and ERP phases. I request ROs to kindly coordinate and compile all the customizations requests from concerned stakeholders. And if there is, like Ramesh ji said, if there is, if you require demo logins, I would request you to kindly send a communication, and that shall be provided by the NUSV team. So I think with that we can end this session. ठीक है रजनीश जी, थैंक यू। We'll just wrap it up for now, and whatever the requests are being raised and consolidated reports which we get, once it is vetted, we can take it up at the, if it is a customization, we can take it as a customization, or it is any simple explanation part, we can explain. Yeah, I'm SBI team from Gujarat. So we have some query. Ramesh ji, please listen to it. There is a query. Yeah, please continue. So regarding that customization BRT, we have already shared that BRT to CPMU, and also CPMU has already forwarded to NUSC team. We have shared 4 customization requests from Gujarat. So any update on it? Any update on the same? Rajneesh ji, I think we have already discussed this in the morning, because it has been taken up between very, I think by starting from yesterday or Monday. So we'll have to get into it, and then we'll give a timeline. Let me discuss with my team and get back to you on this. Okay. The concerned BRDs have been forwarded to NUSV. Yes. If and you have any more BRDs or any more customizations, please consolidate and forward that as well. Meanwhile, like Ramesh ji said, they will get back to us and to you on the BRDs that we have already shared with them. Ramesh, we have few more queries. Hello. Just you can consolidate your queries and please send it for vetting to SPMU team. Then they will send us, they will share us. Ramesh, why I am raising this query over here, because we are not receiving a response from any USP team over the email. So please request. Yeah, you can yeah, you discuss the same with the CPMU team. Ask SPMU team to discuss the same with CPMU team. They'll respond on that. There is another. I think Mamta ji, can you just regarding training, what is the update on the pre-data migration? Pre-data migration training is pending, so it is developed or it is pending. Ramesh ji.
Rajneesh ji, this training is for DCT training, right? Once let the DCT complete, then we'll update you with the pre-migration. Only the asset we are already capturing borrowings and everything here itself. So if the जस्ट टू करेक्ट, ये ट्रेनिंग DCT एंड ERP की थी, तो इन दोनों के बीच में प्री डेटा माइग्रेशन स्टेप है which is missing right now. आप DCT कंप्लीट करेंगे तो बिफोर दैट यू विल गेट द ट्रेनिंग ऑफ प्री माइग्रेशन आल्सो इफ इट हैज टू बी डन. It will be communicated accordingly. Okay. Ramesh, Durve here from Ahmedabad, Aro. Yes, sir. Why we are asking this regarding that customization? अगर आप नहीं करोगे तो our bank has clearly given a message to NABARD that कि unless that customization done by the NUSP, they will not go further in DCT. So जितनी जल्दी आप कस्टमाइजेशन करोगे उतने जल्दी हम लोग DCT कर पाएंगे. PM वाला मीटिंग के लिए क्या कर रहे हो? सर वो डिस्कस करते हैं सर, टीम से हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको अकॉर्डिंगली आपको कम्युनिकेट कर देंगे सर. How many days it will take again? Sir, I'll discuss with you separately, sir. Okay. Ramesh, by when can you get back to Gujarat on the BRDs that we have forwarded you? I'll update you, Rajneesh, because I'll have to discuss with the team today, and I'll update you by tomorrow. Okay, by tomorrow. Okay, Ramesh. Please keep Gujarat also in the loop in that communication. Yes, sure. आपका स्क्रीन व्हाट्सएप स्क्रीन शेयर हो रहा है रमेश जी. Oh, sorry. Okay, with that I think we can end this meeting. Thank you everyone for joining. I would request ROs to do the needful after the meeting regarding customizations, compiling and sending. Yes, I think Rajneesh, I think we can conclude this for today. Thank you. Okay, thank you. Thank you all.